السلام علیکم. آج 6 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں سادیہ خواص. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ارشد شریف قتل کیس کی FIR درج کرنے کے حوالے سے وزارت داخلہ میں اجلاس ہوا جس میں اندراج مقدمہ پر غور کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ عدالتی احکامات پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا. ارشد شریف قتل کی FIR آج ہی اسلام آباد میں درج کی جائے گی. تاہم FIR کس کی مدعیت میں درج کی جائے اس پر مشاورت جاری ہے. سپریم کورٹ نے صحافی ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ آج ہی درج کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے از خود نوٹس کی سماعت میں میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی. کل پھر سماعت ہوگی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. بڑی عدالت میں بڑے کیس کی سماعت. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آج عدالت لگائی اور آج ہی مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا. عدالت عظمیٰ نے صحافی ارشد شریف قتل پر از خود نوٹس لیا اور 5 رکنی بینچ نے سماعت کی. سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری داخلہ بھی پیش ہوئے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. ارشد شریف نامور صحافی تھے. اٹارنی جنرل صاحب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو واپس آئے کافی عرصہ ہو گیا لیکن میڈیکل رپورٹ ابھی تک نہیں ملی. حکومتی کمیشن کی حتمی رپورٹ تاحال کیوں نہیں ملی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رپورٹ کیوں نہیں آ رہی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جب رپورٹ آئی وزیر داخلہ فیصلہ آباد میں تھے. ان کے دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ کو رپورٹ دی جائے گی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا وزیر داخلہ نے رپورٹ تبدیل کرنی ہے؟ رپورٹ آج ہی جمع کرائیں تاکہ کل سماعت ہو سکے. 43 دن سے رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پاکستان میں پہلا کام مقدمہ درج کرنا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ارشد شریف کی ہلاکت انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. اس معاملے پر کینیا کے صدر سے بات کی تھی. وہ اسلام آباد میں جرنلسٹ سیفٹی فورم کے تحت تقریب سے خطاب کر رہے تھے. Murder of Arshad Sharif is obviously a very sad incident which happened in Kenya, and I spoke to the President of Kenya myself for speedy action in this behalf. I have written a letter to the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to constitute a commission, and I hope some action will be taken. Freedom of expression in this country has been extremely close to the hearts of civil society, independent journalists, media, print, electronic, and of course other important segments of society. Pakistan became the first country in Asia to pass legislation on the safety of journalists. The Protection of Journalists and Media Professionals Act recognizes the rights of journalists and media professionals against ill treatment, harassment and intimidation, including the loss of life. لاہور ہائی کورٹ نے سائفر آڈیو لیک کے معاملے پر عمران خان کی طلبی کا FIA کا نوٹس معطل کر دیا. عدالت نے نوٹس پر عمل درآمد تا حکم ثانی روک دیا ہے. مزید سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. آپ کو اپڈیٹ کریں. لاہور ہائی کورٹ نے سائفر آڈیو لیک کے معاملے پر عمران خان کی طلبی کا FIA کا نوٹس معطل کر دیا ہے. عدالت نے نوٹس پر عمل درآمد تا حکم ثانی روک دیا ہے. مزید سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں تحریک انصاف نے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک کا شیڈول جاری کر دیا ہے. 7 سے 17 دسمبر تک حلقہ وار ریلیاں نکالی جائیں گی. ترجمان پنجاب حکومت مسرر جمشید چیمہ کی جانب سے جاری کیے گئے شیڈول کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور میں 7 دسمبر کو حماد اظہر کے حلقہ NA 126 سے تحریک کا آغاز ہوگا. 8 دسمبر کو NA 135 میں کرامت کھوکھر، 9 دسمبر NA 130 شفقت محمود، 10 دسمبر PP 151 میں میاں اسلم اقبال، 11 دسمبر کو PP 158 میں میاں اکرم عثمان احتجاجی ریلیوں کی قیادت کریں گے اور عوامی احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. 12 دسمبر کو
को PP 161 में नदीम भारा, 13 दिसंबर PP 167 में शबीर गुज्जर, 14 दिसंबर PP 159 में मुराद रास, 15 दिसंबर PP 170 में जहीर अब्बास खोखर, 16 दिसंबर PP 173 से सरफराज खोखर, जबकि 17 दिसंबर को PP 160 में मियां महमूद रशीद अपने अपने हलकों में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि 11 रोज में रैलियों के जरिए फौरी इलेक्शन का ऐलान करके मईशत दिवालिया होने से बचाने का मुतालबा किया जाएगा। 19 या 20 दिसंबर को लिबर्टी चौक में इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ तारीखी रैली की सूरत में एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान पर कड़ी तनकीद की है। ट्वीट में लिखा कि इमरान खान का एहतसाब का बयानिया फेल हो गया। ये फॉरेन एजेंट, हीरो और तोशाखाना के चोर हैं। शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाने वाले, मीडिया और सियासी मुखालफिन पर जुल्म करने वाले शहबाज शरीफ को ना बताएं कि कश्मीर पर क्या करना है। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि इमरान खान जेल जाने के खौफ से रो रहे हैं। इमरान खान को बाकी जिंदगी सियासी यतीम के तौर पर गुजारनी होगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब ने सूबे की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए 9 दिसंबर को इजलास तलब कर लिया है। इजलास वजीर दाखिला राना सना की जेर सदारत होगा, जिसमें आम इंतखाबात की तैयारी, असेंबली के मुतवक्के तहलील और मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर होगा। तंजीम साजी से मुतालिक मामलात भी जेर बहस आएंगे। इजलास में डिविजनल ओहदेदारान भी शिरकत करेंगे। यूसी सतह पर तंजीम साजी के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम मुज़ाकरात रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 19 से 21 दिसंबर तक वाशिंगटन का दौरा करेंगे। माशी ताउन, तिजारत, सलामती, अफगान सूरत हाल पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क भी जाएंगे। न्यूयॉर्क में G77 के प्रोग्राम की सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो UN सलामती कौंसिल की तकरीब में शिरकत भी करेंगे। डॉलर की कीमत में आज भी इजाफे का रुझान देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 20 पैसे बढ़ गई। लेन देन 224 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 223 रुपए 90 पैसे रिकॉर्ड की गई थी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 231 रुपए 50 पैसे है। हुकूमत पर वाजिबुल अदा कर्जों की मजमूई मालियत 500 खरब रुपए से तजावुज कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां माली साल 4 माह के दौरान मकामी और गैर मुल्की कर्जों में 5% इजाफा हुआ। भारी माली खसारा, हुकूमत का कर्जा बढ़ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां माली साल जुलाई से अक्टूबर तक हुकूमत के मुकामी और गैर मुल्की कर्जे 5% बढ़ गए। अक्टूबर तक कर्जों की मालियत 501 खरब 51 अरब रुपए की तारीखी सतह पर पहुंच गई, जो जून तक 477 खरब 84 अरब रुपए थी। मौशी माहिरीन का कहना है कि मालियाती खसारा पूरा करने के लिए मुल्की बैंकारी निज़ाम और बैरूनी वसाइल से कर्जे लेने की वजह से मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है। हिफाजती इकदामात यकीनी न बनाने पर सीडी और इस्लामाबाद इंतजामिया ने रात गए सेंटोरस मॉल सील कर दिया। ताजिरों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। हिफाजती इकदामात या फिर इंतकामी कार्रवाई, सीडीए और इस्लामाबाद इंतजामिया ने रात गए सेंटोरस मॉल को सील कर दिया। मॉल को चारों अतराफ से खारदार तारें लगाकर बंद किया गया। सीडीए बिल्डिंग कंट्रोल और इस्लामाबाद इंतजामिया ने मॉल इंतजामिया और गार्ड्स को बाहर निकालकर दाखिली रास्ते पर हुक्मनामा चस्पा कर दिया। सीडीए के मुताबिक कई नोटिस के बावजूद बिल्डिंग कंट्रोल और फायर सेफ्टी इकदामात नहीं उठाए गए और न ही हालिया आतिशज़दगी का नुकसान का इजाला किया गया, जिस पर मॉल को सील किया गया है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि वजीर आजम आजाद कश्मीर और सेंटोरस के मालिक तनवीर अलियास गुज़िश्ता रोज मंगला में तकरीब के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ को टोकने पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। इस्लामाबाद ताजिर तंजीमों ने मॉल को सील करने के खिलाफ एहतजाज भी किया। आपको अपडेट करें, सीडीए का सेंटोरस मॉल को डी सील करने का फैसला। सेंटोरस मॉल को जल्द ही डी सील कर दिया जाएगा। मॉल के जिस हिस्से में कवायद की खिलाफ वर्जियां की गई हैं, सिर्फ वो हिस्सा बदस्तूर सील रहेगा। अपडेट करें आपको, सेंटोरस मॉल को जल्द ही डी सील कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है सीडीए का। और इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि कवायद की खिलाफ वर्जी वाला हिस्सा बदस्तूर सील रहेगा। खबरों का सिलसिला जारी है, यह वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि 8 माह में कौम ने रियासत के जवाल को देखा है। इन पर
इन पर हमले की साजिश करने वालों को कटहरे में लाने के बजाय रियासती पनाह दे दी गई। लाहौर में सहाफियों और यूट्यूबर से गुफ्तगू में इमरान खान का क्या कहना था, जानते हैं हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीक मलिक से। अतीक मलिक, एक तो ये बताइएगा आज सुबह से उनकी मसरूफियात क्या रही और किन किन से मुलाकातें हुई? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सियासी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और आज दिन भर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होती रही हैं। सबसे पहले तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लाहौर के जितने ओहदेदार हैं और तंजीमी टिकट होल्डर्स हैं उनसे भी मुलाकातें हुई हैं और जो आंदा आने वाले जो तहरीक है और मुल्क बचाओ और तहरीक चलाओ, इस पर जो है खसूसी तौर पर जो है वो मेहनत की जा रही है और तमाम जो रहनुमा हैं उनकी जो जिम्मेदारियां और टास्क भी सौंप दिए गए हैं कि वो कल से जो है बाकायदा तौर पर रैलियां निकालेंगे शहर भर में। और इसके साथ साथ आज जो है वो स्पेशली जो नौजवान सहाफी और सोशल मीडिया जो ब्लॉगर्स हैं उनसे मुलाकात हुई है और मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी पहलुओं पर जो है वो गुफ्तगू की गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये कहना है कि गुज़िश्ता 8 माह के दौरान कौम ने रियासत को जो है पस्ती में उतारते हुए जो है उन्होंने देखा है और तारीख, दस्तूर और कानून की पामाली और सियासी इक़्तिदारों इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से ऐसे मुजाहरे की नजीर जो है वो करने से कासिर हैं। इसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये कहना है कि चादर और चार दीवारी की हुर्मत, पामाल और समाजी मुआशरती अखलाक का जो रोक टोक है उसका जो है वो जनाजा निकाला गया और सियासी जो दस्तूरी आजादियों का गला जो है वो घोंट कर मुक्तदर अशरफिया के मुफादात की आपारी जो है वो की गई है। और इसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो है वो आजम स्वाति और शहबाज गिल पर होने वाले जबर और जो FIR। अतीक मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पुलिस मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोकते रहे। मुस्लिम वोटर्स को शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मतलब क्या अगर मुसलमान वोट नहीं डालने दे रहे, हम पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं, बीजेपी के लोग मार रहे हैं, पुलिस को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स अपने राय दही से महरूम। ID मांगी, ID दिखाई हमने और पर्ची हमारी लेके फाड़ के उन्होंने फेंक दी, बोले चलो जाओ घर को। हमारा आधार गलत है, ये डुप्लीकेट है, ये है साहब, बहुत बार मुझे रेड लगी, यहाँ पे कैसे पोल कराएं? कहाँ से बोल रहे, कौन सा पोलिंग स्टेशन है? वो है गुलशन है, बता। रामपुर की नशस्त पर ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग के दौरान पुलिस मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोकती रही। शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। भाई वोट डालने आए, हमारा वोट है, नहीं जाने नहीं, लाठी खाने को लाठी खाओ। पुलिस और दीगर सियासी उम्मीदवार मुस्लिम वोटर्स को मुसलसल हिरासा करते रहे। मैं इस कोने से देख रहा हूँ कि यहाँ पर पुलिस वोट डलवा रही है, क्या हम पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं, बीजेपी के लोग? देखिए, रामपुर में पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है और खुलेआम ये कह रही है कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने देंगे। मार रहे आवाज नहीं दे रहे, पुलिस को को। मुस्लिम उम्मीदवार के मुताबिक मुस्लिम इलाकों में बामुश्किल 8 से 10% पोलिंग हुई। वोटरों से उनके वोटर कार्ड्स भी छीने गए, बदसलूकी भी की गई। तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत को 30 साल गुजर गए। वाकया भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत की याद दिलाता है। तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत को 30 बरस मुकम्मल। सानिह पर उम्मती मुस्लिमा के जख्म आज भी ताज़ा हैं। 6 दिसंबर 1992 को हजारों इंतहा पसंद हिंदुओं ने तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था, जिसके बाद भारत में तारीख के बदतरीन फसादात फूट पड़े। 3000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। मुस्लिम बरादरी ने इसे मजहबी हुकूक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। 27 साल तक केस चलता रहा, लेकिन 2019 में भारतीय आला अदलिया ने केस का फैसला सुनाते हुए मुकम्मल जानिबदाराना किरदार अदा किया। हिंदू तवा नजरिए को तरजीह देते हुए हिंदुओं को बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर बनाने की इजाजत दी। सिर्फ यही नहीं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्विस LK अडवाणी जैसे बीजेपी के रहनुमाओं को भी बरी कर दिया।
भारत में हिंदू तवा कुव्वतें मुसलमानों के मजहबी मकामात को मुसलसल मुनहदम करने के साथ साथ मुस्लिम नामों से मंसूब इलाकों के नाम तब्दील कर रही हैं। मुसलमानों पर तशद्दुद, उनकी नस्ल कुशी जारी है, लेकिन आलमी बरादरी और मजहबी हुकूक की अलमबरदार आलमी तंजीमें तमाम तर सूरत हाल पर चुप साधे हुए हैं। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मेजर जनरल मलिक अमीर मोहम्मद ने शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पाक आर्मी के चौको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद वाहिद फौजी अफसर हैं जिनको निशाने जुर्रत और निशाने हैदर अता किया गया। 1971 की जंग के दौरान हेड सुलेमानकी के महाज पर दुश्मन की फौजियों और टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया और जामे शहादत नोश किया। खबरों का सिलसिला जारी है, यह वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।